Hello my dear students, this is Swati Chavla. I welcome all of you on my YouTube channel. As you know, in our previous video, we have discussed the basic introduction of database and its advantages, what is RDBMS. Plus, we have also discussed how to download and install JRE in your system. I hope you have watched those videos also. If not, I will provide you the link of those videos in my description also. Plus, you can find it out in this I button also. So now, in this video, we will discuss how to create and edit tables using Wizard and SQL commands. Basically, first we will start with the introduction of RDBMS. Then we will discuss how to create a database, what are the steps to create a table using Table Wizard, data types क्या होते हैं, how to set the primary key, what is primary key, and how to create a table using SQL commands, design view. ये सारे टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल and not subscribed it yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. So now let's start our today's video. So now let's start with the introduction first, that is RDBMS. This we have discussed in our previous video also. The full form of RDBMS is Relational Database Management System, and in RDBMS we generally organize our data in the form of tables, and tables जिसमें हमारा data किसकी form में होगा, in the form of rows and columns. In RDBMS we generally use the language SQL, Structured Query Language. इस लैंग्वेज के हम सिंटेक्स कमांड्स को यूज करके अपने डेटाबेस में ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं. These are the four main database objects that we will discuss in our upcoming videos also. These are the building blocks of database, and these are your tables, queries, forms and reports. First one is tables. Tables आपको पता है सारा का सारा डेटा आपका किसकी फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगा, in the form of tables. Now let's suppose I have created one table here with name, roll number, let's suppose name, class, marks, address, like this. अब मैंने क्या क्वेरी अप्लाई की कि आई वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड मार्क्स अबव 80, कि जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स 80 से ज्यादा है मुझे उनका रिकॉर्ड चाहिए. तो दैट मीन्स हियर व्हाट आई हैव डन, आई हैव अप्लाइड द क्वेरी. सो आपको अकॉर्डिंगली कि आप कंडीशन अप्लाई करोगे बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, you will fetch the data, you will retrieve the data from the database. This is known as your query. Forms, user friendly form में जैसे आप लोग फॉर्म में डेटा फिल करते हो, similarly it will be like this. And reports में आपका सारा का सारा डेटा समराइज्ड फॉर्म में होगा, that will be in the printed form. These database objects we will cover one by one. In this video we will focus on this tables. Next है how to create the database using OpenOffice. So these are the steps to create a database using OpenOffice base. This we will do practically, and the very first step is very obvious. You have to open the OpenOffice base. तो जो भी आपको वो wizard guide करेगी steps के साथ, we have to follow those steps to create a database using OpenOffice base. So now let's start it practically. So now from here let's open OpenOffice base. इस तरीके से इसका इंटरफेस होगा. If you have installed your JRE very successfully, तो आपका यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगा. Otherwise you will get the error here, right? Now see this wizard. Welcome to OpenOffice Database Wizard. Use the Database Wizard. Wizard का मतलब क्या होता है कि जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि हाउ टू डू दिस, राइट? So to create a new database or open an existing database. तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर. What do you want to do? Create a new database and open an existing database. अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रहे हैं. So then we have to select this first option, create a new database. अगर हमारा database create हो जाएगा जैसे हम नेक्स्ट आगे भी करेंगे तो we will select on this option, open an existing database. But here if you are creating it first time, so then select here, create a new database, and then you have to click on the next option. After clicking on this next option,
डिसाइड हाउ टू प्रोसीड आफ्टर सेविंग द डेटाबेस, कि जब आपका डेटाबेस सेव होगा तो आपने उसमें क्या वर्क करना है एक तरीके से, राइट? तो रजिस्टर करना हमने डेटाबेस को, प्लस ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग, कि हमने डेटाबेस को ओपन करना है. सो देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फिनिश बटन. आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस फिनिश बटन, it will prompt you to save the database. Let's suppose here I am saving the file with name YT class 10, right? And I am clicking on this save option. अब जो आपका वो डेटाबेस है उस नेम से वो क्रिएट हो जाएगा. अब आप यहाँ पर देख सकते हो टॉप पर YT class 10.odb. This ODB is the extension of OpenOffice base and YT class 10 is the name of your file. Now see these 4 building blocks which I told you earlier also. These are my 4 building blocks of, or you can say database objects, tables, queries, forms and reports, right? अब जैसे आप इस टेबल पर क्लिक करोगे तो आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे that will be related to table. क्वेरीज पर क्लिक करोगे क्वेरीज से रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे. फॉर्म पर क्लिक करोगे फॉर्म को क्रिएट करने के ऑप्शंस आएंगे. And if you will click on this report option, तो you will get the option to create a report. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है. अब टेबल क्रिएट करने की मेरे पास क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, और यू कैन यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, प्लस यू कैन यूज योर SQL कमांड ऑल्सो टू क्रिएट द टेबल. बट टेबल क्रिएट करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर डेटा टाइप्स. नाउ सी डेटा टाइप्स मीन्स डेटा और उसकी टाइप, कि जो आपने टेबल बनाई है उसमें हम कॉलम्स लेंगे, फील्ड्स, उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, दैट इज नोन एज योर डेटा टाइप. फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रोल नंबर, अब रोल नंबर में इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी, तो इंटीजर इज द डेटा टाइप ऑफ दैट कॉलम रोल नंबर. सो डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ डेटा और वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर इन दैट पर्टिकुलर कॉलम. उस कॉलम में आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कराओगे. फील्ड्स themselves कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग ऑन द डेटा दे कंटेन. मीन्स जो आपके कॉलम्स हैं, फील्ड मीन्स कॉलम के नेम्स, उसमें कि उस कॉलम का नेम क्या है डिपेंड करते हैं कि उसमें उस टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कराएंगे. लेट्स सपोज अगर वो डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कराना प्रेफर नहीं करेंगे, राइट? So data types in OpenOffice base are broadly classified into 5 categories. These are the main categories of data types: numeric types, alphanumeric types, binary types, date and time, and then other variable types. First we will start with numeric types. अब numeric name से ही clear है बच्चों, means numerical values. Numeric data types are used for describing numeric values for the field used in the table of a database. कि अगर आपकी टेबल में कोई कॉलम ऐसा है जिसमें सिर्फ आपने न्यूमेरिक वैल्यूज ही एंटर करनी है, कोई कैरेक्टर कोई अल्फाबेट एंटर नहीं करना, तो देन यू विल गो विद न्यूमेरिक डेटा टाइप्स. न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन अ डेटाबेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन सच एज रोल नंबर हो गया, आपके मार्क्स हो गए, मोबाइल नंबर हो गया. अब मोबाइल नंबर में अगर मैं आके कंट्री कोड भी लिख रही हूँ लाइक +91, तो अगर मैं प्लस ले रही हूँ तो वो आपके वहां पर आप न्यूमेरिक डेटा टाइप नहीं कंसीडर कर सकते. Numeric data type means it will contain only numerical values. These are various my numeric data types. Boolean, yes or no. अगर आपने किसी चीज में आपको आंसर yes no में चाहिए, like suppose अगर मैं स्टूडेंट की टेबल बना रही हूँ तो होमवर्क या असाइनमेंट सबमिटेड और नो, yes or no. So there we can take the data type of Boolean. Tiny integer, store integer range between 0 to 255. मीन्स अगर आपको सिर्फ 0 से लेकर 255 तक की वैल्यूज ही स्टोर करानी है तो यू कैन गो विद टेन इंटीजर. स्मॉल इंटीजर की रेंज ही है, इनमें सिर्फ रेंज का फर्क है कि कहां से कहां तक आप वैल्यूज को, मीन्स इट विल कंसीडर दोस वैल्यूज. बिग इंटीजर आपने काफी बड़ी वैल्यू लेनी हो, 2⁻63 जो भी होगा फ्रॉम माइनस टू 2⁻63 -1. न्यूमेरिक वैल्यूज अगर आपने लेनी हो, डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यूज लेनी हो, रियल नंबर्स, फ्लोटिंग वैल्यूज, डबल, ये सारी आपकी डेसिमल के लिए है, मींस पॉइंट वाली वैल्यूज के लिए. बस डिफरेंस कहां पर आएगा बच्चों, प्रिसीजन में. नेक्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक टाइप्स. अल्फा मींस अल्फाबेटिकल वैल्यूज एंड न्यूमेरिक मींस न्यूमेरिकल वैल्यूज, एंड अल्फा न्यूमेरिक मींस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू.
तो इसमें मैं अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक दोनों वैल्यूज को इंक्लूड कर सकती हूँ। अल्फान्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग अल्फाबेट्स as well as the numerical values for the field used in the table। अब इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो लाइक एड्रेस, उसमें हमारे पास अल्फाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होती हैं, राइट। और अगर आपने और किसी चीज की डिस्क्रिप्शन लिखनी हो तो देन आल्सो यू कैन गो विद अल्फा न्यूमेरिक। अगर आपने सिंपल नेम लिखना है तो उसके लिए भी हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप ले सकते हैं। अब अल्फा न्यूमेरिक में मेरे पास कौन सी आती है, लॉन्ग वारकेर, कैर, वारकेर एंड वारकेर इग्नोर केस। लास्ट वन जो है वारकेर इग्नोर केस, ये केसेस को इग्नोर कर देता है, मीन स्मॉल कैपिटल डजंट मैटर फॉर इट। वारकेर वेरिएबल कैरेक्टर, कैर आपका फिक्स्ड साइज कैरेक्टर लेगा। इसमें भी आप इसको रीड आउट करोगे तो सिंपल आपका किसका डिफरेंस रहेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का। नेक्स्ट आता है मेरे पास बाइनरी टाइप्स। अब बाइनरी मीन्स क्या होता है, 0-1 के फॉर्म में। सो बाइनरी डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट में जो आपका डेटा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फोटोज, म्यूजिक फाइल, ऑडियोज, वीडियोज, कोई डॉक्यूमेंट्स ये सब स्टोर कराना है तो वी कैन गो फॉर बाइनरी टाइप्स। इन बाइनरी वी आर हैविंग लॉन्ग वेरिएबल बाइनरी, बाइनरी एंड वेरिएबल बाइनरी, दीज आर द डेटा टाइप्स। नेक्स्ट आता है बच्चों मेरे पास डेट एंड टाइम। अगर आपको कुछ डेट ऑफ बर्थ स्टोर कराना हो, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एनीथिंग रिलेटेड जिसमें आपका डेट और टाइम यूज हो रहा हो तो देन वी कैन गो विद डेट एंड टाइम डेटा टाइप। ये आपको याद सिर्फ इतना ध्यान रखने की कौन कौन सी मेन डेटा टाइप्स हैं जो आपकी मेनली यूज होते हैं, दैट इज इंटीजर, वारकेर और एक आप डेसिमल यूज कर सकते हो इस तरीके से, राइट। और डेट एंड टाइम भी यूज हो सकता है। आप जैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे वहां पर आपको ड्रॉप डाउन एरो की दिखेगी, वहां पर ये सारी की सारी डेटा टाइप्स होंगी। सो फ्रॉम देयर वी कैन सेलेक्ट आवर डेटा टाइप आल्सो। Date time data types are used for describing date and time values for the field used in the table of database. Examples given है, if you want to store information such as date of birth आपने store करानी हो, date of admission store कराना हो, date of product sale, इस तरीके से। तो हम कौन सी डेटा टाइप ले सकते हैं, डेट एंड टाइम। अब फर्स्ट है मेरे पास डेट, कि आपका मंथ, डे एंड ईयर, पहले मंथ फिर डेट एंड देन फिर ईयर, इस फॉर्म में आपके डेटा को स्टोर करेगा। टाइम, आवर, मिनट्स एंड सेकेंड, टाइम स्टैम्प, इसमें आपकी दोनों चीजें आएंगी, स्टोर्स डेट एंड टाइम। डेट सिंपल डेट को स्टोर करेगा, मीन्स ओनली डेट। टाइम विल स्टोर द डेट इन द फॉर्म ऑफ टाइम ओनली। टाइम स्टैम्प में आपका डेट और टाइम दोनों ही इंक्लूडेड होंगे, राइट। नाउ आई होप आपको डेटा टाइप्स पता लग गया किस तरीके से कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिकली कि हाउ टू क्रिएट द टेबल। अब टेबल क्रिएट करने के लिए मेरे पास देखो कितने मेथड्स हैं। There are two different ways to create a table. First one is using wizard to create a table and second one is create table in design view. Wizard means कि आपको स्टेप बाय स्टेप वो wizard वो डायलॉग बॉक्स ही गाइड करेंगे कि आपने नेक्स्ट स्टेप कौन से परफॉर्म करने हैं, राइट। तो नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द wizard ऑप्शन कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग wizard. Now let's go to our open office base. So यहाँ पर आपने टेबल पर क्लिक करना है। तो now here you can see create table in design view and use wizards to create the table. Plus we can use one more method, that is SQL command also to create the table. That also we can use, right? So अब हम first कौन सा start करेंगे, use wizards to create table, this one. So we have to click on this option, use wizards to create table. After that this dialog box will appear. Now see the steps at left hand side, select fields, select types and formats, set primary key and then create table. अभी ये ऑप्शंस आपके हाईलाइटेड नहीं है, जैसे जैसे हम फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट स्टेप्स आपके हाईलाइट होते जाएंगे। तो सेलेक्ट फील्ड्स फॉर योर टेबल। अब फील्ड्स मींस बच्चों कॉलम के नेम्स, राइट। तो द विजार्ड हेल्प्स यू टू क्रिएट अ टेबल फॉर योर डेटाबेस आफ्टर सेलेक्टिंग अ टेबल कैटेगरी एंड अ सैंपल टेबल। मीन्स पहले आपको यहाँ से कोई कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। टू कैटेगरीज गिवन है, बिजनेस और पर्सनल। फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट एनी कैटेगरीज। जो से कैटेगरी सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड जो टेबल्स आपकी कॉलम के नेम्स हैं इसमें वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ लेट्स सपोज हियर आई एम क्लिकिंग ऑन दिस बिजनेस कैटेगरी। तो बिजनेस से रिलेटेड ये सारी टेबल्स इसमें ऑलरेडी हैं, वैल्यूज नहीं है
बट इनका स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है। एंड सिमिलरली सपोज इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस पर्सनल ऑप्शन, तो पर्सनल से रिलेटेड ये सारी कैटेगरीज यहाँ पर गिवन है, राइट। सो हमने लेट सपोज सेलेक्ट किया बिजनेस, और बिजनेस में हम यहाँ ले लेते हैं लेट सपोज कस्टमर नेम से टेबल। अब यहाँ पर क्या गिवन है, अवेलेबल फील्ड्स, और यहाँ पर गिवन है सिलेक्टेड फील्ड्स। तो कस्टमर टेबल में जो आपको पहले से टेबल बनी हुई है, ये सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं। अब इट मे बी पॉसिबल कि हमें ये सारे फील्ड्स ना चाहिए हो, तो उसके लिए हम ये वाले 4 ऑप्शंस यूज करेंगे। जो सेकंड ऑप्शन जो अभी हाईलाइटेड है, दिस इज यूज फॉर ऑल, मीन्स कि अगर आपको सारे के सारे फील्ड्स यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ सिलेक्टेड फील्ड्स में वो फील्ड होंगी जो एक्चुअल आपको अपनी टेबल के लिए चाहिए, राइट। सारी नहीं चाहिए, इसको हमने 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है। लेट सपोज पहले मुझे चाहिए एड्रेस, ले लेते हैं, सेलेक्ट करके ये एरो की प्रेस करेंगे। देन लेट सपोज कंपनी नेम, यहाँ पर हमने ले लिया। कस्टमर आईडी भी मुझे चाहिए, एंड देन लेट सपोज कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं, राइट। अब आपको लेट सपोज ये कस्टमर आईडी सबसे पहला फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो यू कैन सेलेक्ट इट हियर एंड देन क्लिक हियर। उसके बाद आपको कंपनी नेम चाहिए, या फिर नहीं चाहिए तो आप इसको वापस से ये लेफ्ट एरो की प्रेस करके हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं। कंपनी नेम की जगह हम यहाँ पर अगर कस्टमर का नेम गिवन है जैसे फर्स्ट नेम, तो वो ले लेते हैं, राइट। इस फर्स्ट नेम को हमने यहाँ ले लिया, फिर एड्रेस एंड देन फिर मोबाइल नंबर। ये हमारे सेलेक्टेड फील्ड्स हो गई। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट ऑप्शन। अब सेलेक्टेड फील्ड्स यही सेलेक्ट है मेरे पास। अगर आपको कोई और फील्ड चाहिए तो फ्रॉम बाय प्रेसिंग द प्लस बटन हियर आप यहाँ पर कोई और फील्ड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब कौन सी फील्ड हो सकता है, कोई फील्ड आपकी वहां पर ना हो तो आप वो यहाँ पर ले सकते हो, नहीं चाहिए तो यहाँ से हम माइनस प्रेस कर देंगे, राइट। अब यहाँ पर फील्ड की इंफॉर्मेशन गिवन है। कस्टमर आईडी इंटीजर में गिवन है, फर्स्ट नेम डेटा टाइप varchar गिवन है, एड्रेस की डेटा टाइप varchar गिवन है, मोबाइल नंबर varchar। अगर आपको इंटीजर लेना है आप इंटीजर ले सकते हो, बिग इंटीजर लेना है बिग इंटीजर ले सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर एक मुझे गिवन है कस्टमर आईडी में इंटीजर प्लस ऑटो वैल्यू। ऑटो वैल्यू क्या है कि यहाँ पर मैं वैल्यू नहीं एंटर करूंगी, ऑटोमेटिकली इट विल ऐड 0 1 2 3 4। जैसे मैं नेक्स्ट रो ऐड करूंगी, रिकॉर्ड ऐड करूंगी, नेक्स्ट वैल्यू ये अपने आप ले लेगा। एंट्री रिक्वायर्ड, यस की मैंडेटरी हो जाएगी वहां पर एंट्री करना, राइट। हम उसकी वैल्यू को स्किप नहीं कर सकते। मैक्सिमम लेंथ में इसमें 10 तक डिजिट्स एंटर कर सकती हूँ, फर्स्ट नेम में 50 तक एंटर कर सकती हूँ। अगर आपने चेंजेस करने सपोज 20 करना है तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, राइट। तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मेरे पास आता है सेट प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होती है कि जो आपकी टेबल में एक ऐसा कॉलम जो हर एक रिकॉर्ड के लिए मेरा क्या होगा, यूनिक होगा। सो अब प्राइमरी की यहाँ पर डेफिनेशन भी मेंशन है। अब प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस टेबल। जैसे अगर मैं आपके क्लास की बात करूं तो 11 यू आर इन क्लास 10th, तो 10th क्लास में एक सेक्शन की अगर हम बात करें तो रोल नंबर कैन बी और प्राइमरी की, वो किसी स्टूडेंट का रिपीट नहीं होगा। बट सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटाबेस ऑफ कंप्लीट होल स्कूल, तो वहां पर हम एडमिशन नंबर को हम प्राइमरी की कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज रोल नंबर 1 तो मुझे हर एक क्लास में मिलेगा, सिमिलरली रोल नंबर 2 भी मुझे हर एक क्लास में मिलेगा। बट एडमिशन नंबर हो गया या आपका आधार कार्ड नंबर हो गया, दैट विल बी सेम फॉर एवरी स्टूडेंट, राइट। तो फिर वहां पर हम वो उस कॉलम को एज अ प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। विदाउट अ प्राइमरी की इट विल नॉट बी पॉसिबल टू एंटर डेटा इनटू दिस टेबल। तो अगर आप प्राइमरी की सेट नहीं करोगे वो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा, राइट। बाय डिफॉल्ट मुझसे स्किप की प्रेस हो गया, आई थिंक दोबारा से सेट कर देते हैं। यूज विजार्ड्स टू क्रिएट टेबल, लेट्स क्विकली डू दैट। यहाँ से हमने कस्टमर सेलेक्ट कर दिया, कंपनी नेम लेट्स स्किप दिस, customer ID we can take, and then यहाँ से हम फर्स्ट नेम ले लेते हैं, उसके बाद हम एड्रेस ले लेते हैं एंड देन कॉन्टेक्ट नंबर, राइट। फिर नेक्स्ट ये एक्सप्लेन कर दिया एंड देन नेक्स्ट क्रिएट प्राइमरी की। अब क्रिएट करनी है, नहीं टिक करोगे तो प्राइमरी की आपकी टेबल में क्रिएट नहीं होगी। तो मैंने इस चेक बॉक्स को टिक कर दिया। अब प्राइमरी की तो मुझे क्रिएट करनी है। Now we are having 2 options. First one is automatically add a primary key, कि मेरा जो ओपन ऑफिस बेस है वो अपने आप ही कोई भी प्राइमरी की ऐड कर देगा। अब वो कैसे ऐड करेगा,
एक अलग से आईडी कॉलम बना लेगा और उसमें ऑटो वैल्यू दोगे तो अपने आप 1 2 3 4 इस तरीके से नेक्स्ट वैल्यू लेता जाएगा। अदरवाइज यू कैन यूज दिस ऑप्शन ऑल्सो, यूज एन एग्जिस्टिंग फील्ड एज अ प्राइमरी की, कि आपके जो कॉलम्स हैं उसमें से आपने किसी को प्राइमरी की सेट करना है। सो लेट्स सपोज हमने यहाँ कस्टमर आईडी को क्या सेट कर दिया, प्राइमरी की, और यहाँ से इसको ऑटो वैल्यू भी सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इस चेक बॉक्स को मैंने क्या कर दिया, टिक कर दिया, तो ऑटो वैल्यू का यूज भी आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा, राइट। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट ऑप्शन। व्हाट डू यू वांट टू नेम योर टेबल, टेबल का नेम क्या देना है, कस्टमर्स दे देते हैं। अब मुझे क्या करना है, व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट, अब मुझे डेटा ही इंसर्ट करना है, तो वी विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन इंसर्ट डेटा इमीडिएटली। अगर आपको टेबल का डिजाइन चेंज करना हो तो यू हैव टू क्लिक हियर, और अगर आपने फॉर्म क्रिएट करना हो तो यहाँ क्लिक करोगे। बट अब मैं टेबल बना रही हूँ तो मुझे यहाँ पर अपना डेटा इंसर्ट करना है, सो वी विल क्लिक हियर ऑन दिस फर्स्ट ऑप्शन इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फिनिश बटन। तो अब यहाँ पर ये आपकी टेबल ये देखो ओपन हो गई है। अब यहाँ पर अगर आप चेक करो तो ये कस्टमर नेम से मेरे पास टेबल क्रिएट हो चुकी है, अर्लियर इट वाज ब्लैंक, राइट। अब इस टेबल को हम ओपन करेंगे, इसको विंडो को ओपन किया। नाउ सी हियर, लेफ्ट में आपको एक येलो कलर से की का सिंबल दिख रहा है, दैट मीन्स ये कस्टमर आईडी मेरी क्या है, प्राइमरी की है। इसको मैंने ऑटो वैल्यू टिक कर दिया था, तो अब इसमें मुझे वैल्यू नहीं एंटर करनी, इट विल ऑटोमेटिकली टेक दैट वैल्यू, राइट। नाउ लेट्स सपोज हियर आई एम एंटरिंग द नेम, लेट्स सपोज नेहा। एड्रेस हमने एंटर कर दिया, लेट्स सपोज सेक्टर 14, और मोबाइल नंबर एंटर कर दिया this one, राइट। नेक्स्ट, अब जैसे मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, एक सेल से दूसरे सेल पे मूव करने के लिए आई एम प्रेसिंग द टैब की फ्रॉम द कीबोर्ड। अब यहाँ पर सपोज आई एम राइटिंग नेम निशा, एड्रेस लेट्स सपोज सेक्टर 15, एंड हियर आई एम राइटिंग द कॉन्टेक्ट नंबर, राइट। अब जैसे मैं यहाँ इस कॉलम पर तो नहीं क्लिक करूंगी, यहाँ पर मैं वैल्यू एंटर नहीं कर सकती, तो यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया, लेट्स सपोज नेम नेक्स्ट सोनिया, एड्रेस सेक्टर 16, यहाँ पर हमने कॉन्टेक्ट नंबर, दीज आर जस्ट रैंडम वैल्यूज, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर हमने नेम एंटर कर दिया पूजा, एड्रेस सेक्टर 17, और यहाँ पर हमने उसका कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर दिया, राइट। सो अब उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट हियर सेव करंट रिकॉर्ड। अब ये सारे रिकॉर्ड्स आपके क्या हो गए, सेव हो गए, राइट। इफ यू वांट तो आप यहाँ पर यहाँ से क्लोज कर दो। तो अब आप यहाँ देखोगे टेबल्स पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टमर्स नेम से टेबल है, इसमें अगर आपने डेटा फिल करना हो तो जस्ट डबल क्लिक हियर, तो आप यहाँ पर अपना डेटा फिल कर सकते हो। कुछ चेंजेस करने हो हम वो भी चेंजेस कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट आवर टेबल यूजिंग विजार्ड। अब सेकेंड मेथड कौन सा है, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। Now to create a table using design view, you have to click here create table in design view। आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर तीन चीजें मेंशन है, फील्ड नेम, फील्ड टाइप एंड देन डिस्क्रिप्शन। यहाँ से आप इसको स्ट्रेच करके इसकी विड्थ इंक्रीज कर सकते हो। दिस डिस्क्रिप्शन फील्ड इज ऑप्शनल, अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो यू कैन डू दैट। अदरवाइज किसी फील्ड से रिलेटेड अगर आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करनी हो तो देन यू कैन डू इट। फील्ड नेम, लेट्स सपोज हियर आई एम टेकिंग रोल नंबर। उसके बाद बाय डिफॉल्ट हर एक की फील्ड टाइप इक्वल सेट इज varchar, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया इंटीजर। देन नेक्स्ट हमने लिया स्टूडेंट नेम, डेटा टाइप varchar। नेक्स्ट लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एड्रेस, डेटा टाइप varchar। एक हम एस कोड कॉलम ले लेते हैं स्ट्रीम कोड के लिए, उसकी डेटा टाइप इंटीजर ले लेते हैं। मार्क्स अगर आपको लेने हो, अब मुझे एस कोड से पहले चाहिए मार्क्स, तो इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट रोज, तो आप यहाँ पर अपने मार्क्स भी इंसर्ट कर सकते हो, राइट। अब उसके लिए हमने डेटा टाइप लेट्स सपोज आई एम टेकिंग डेसिमल, और एक कॉलम और ले लेते हैं लेट्स सपोज डेट ऑफ बर्थ। जो रोज सेलेक्ट करोगे उससे पहले एक ब्लैंक रो इंसर्ट होगी, राइट। सो यहाँ पर हमने ले लिया डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर इसकी डेटा टाइप हम ले लेते हैं डेट, राइट। सो अब ये टेबल के जो फील्ड्स है उसका एक स्ट्रक्चर है, दैट इज रेडी नाउ। अब मुझे क्या सेट करना है, प्राइमरी की। प्राइमरी की मेरी टेबल में होना रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आई कैन नॉट आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स यूनिकली। नाउ सी बच्चों, रोल नंबर को लेट्स सपोज आई वांट टू मेक अ प्राइमरी की, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है।
तो देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन दैट इज प्राइमरी की। अब जैसे ही आप इसको प्राइमरी की सेट करोगे तो यहाँ पर येलो कलर से की बनी आ जाएगी बहुत स्मॉल सी, तो दैट मीन्स ये आपका कॉलम एज अ प्राइमरी की सेट हो चुका है। अब उसके बाद आपने इसको सेव करना है। अगर आप सेव नहीं भी करोगे यहाँ से, इसको क्लोज करोगे, तो देन ऑल्सो इट विल प्रॉम्प्ट यू टू सेव द चेंजेस। सो आई वांट टू सेव द चेंजेस, यस, टेबल नेम इज लेट्स सपोज स्टूडेंट एंड देन क्लिक ऑन दिस ओके ऑप्शन। तो एज यू कैन सी यहाँ पर मेरी स्टूडेंट नेम से टेबल अब आ चुकी है, इट इज क्रिएटेड नाउ। एंड टू पॉपुलेट इट विद वैल्यूज मींस उसमें डेटा फिल करने के लिए यू जस्ट हैव टू डबल क्लिक हियर। तो अभी आपकी टेबल ओपन हो गई है। Now you have to fill the data. Roll number, let's suppose 1, name, Neha, and then address, let's suppose sector 14, date of birth. अब date of birth का format मेरे पास रहता है month, फिर date and then year. Let's suppose 6 and then 2002, right? तो उसने उस according format change कर दिया है। Marks, let's suppose 100, stream code है बच्चों 101. अब नेक्स्ट वैल्यू रोल नंबर 2, नेम निशा, टैब की विल बी यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट सेल, और यू कैन यूज योर माउस लेफ्ट क्लिक या फिर एरो कीज भी यूज कर सकते हो। एड्रेस लेट्स सपोज सेक्टर 15। अब यहाँ पर मंथ मुझे एंटर करना है, लेट्स सपोज 12, डेट मैंने एंटर कर दी 30 एंड देन ईयर लेट्स सपोज 2003। अब 2003 लिखते ही अपने आप 03 हो रहा है, दैट मीन्स इसका जो फॉर्मेट है वो सेट हुआ है डेट का। ये भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम कि फॉर्मेट किस तरीके से सेट करते हैं। मार्क्स आ गए 100 और स्ट्रीम कोड हमने लिख दिया लेट्स सपोज 101। सिमिलरली रोल नंबर 3, नेम सोनिया, एड्रेस लेट्स सपोज सेम सेक्टर 14, मंथ देन डेट एंड देन ईयर, राइट। मार्क्स हमने लिख दिया लेट्स सपोज 75, स्ट्रीम कोड लिख दिया 102। इसी तरीके से आप इसमें अपनी फील्ड्स को पॉपुलेट कर सकते हो, मींस डेटा फिल कर सकते हो। अब मैंने कंट्रोल एस शॉर्टकट की है सेव करने के लिए, वो प्रेस कर दिए तो आपका डेटा यहाँ पर सेव हो चुका है। आप इसको यहाँ से क्लोज कर दो। तो जब आप इसको ओपन करोगे कस्टमर टेबल, ये कस्टमर टेबल का डेटा है। स्टूडेंट टेबल को ओपन करेंगे तो दिस इज द डेटा ऑफ माई स्टूडेंट टेबल, राइट। अगर आपने इसका स्ट्रक्चर चेंज करना हो, डेटा टाइप चेंज करना हो, कॉलम ऐड करना हो, जस्ट राइट क्लिक हियर एंड देन सेलेक्ट दिस एडिट ऑप्शन। तो जैसे आप एडिट पर क्लिक करोगे तो ये आपका वापस से डिजाइन व्यू में ओपन हो जाएगा। तो आप इसमें मींस इसका जो स्ट्रक्चर है दैट यू कैन सेट। सो इस वीडियो में इतना ही। आपको आई होप ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन डिजाइन व्यू एंड हाउ टू यूज अ विजार्ड टू क्रिएट अ टेबल प्लस हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, राइट। आई होप आपके ये सारे के सारे कंसेप्ट अब एकदम क्लियर हो गए हैं। If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.